નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે ફરી એક વખત આપની સામે આવ્યા છે ફરી એક નવી સિરિયલની વાત કરવા માટે, જે સિરિયલ ઘણા સમયથી આપ લોકોના દિલ પર રાજ કરી રહી છે. અને ઘણા બધા લોકો છે કે જે સોની સબ પર રાત્રે 9 થી 9:30 ટીવીની સામે બેસી જાય છે આ સિરિયલને જોવા માટે. કારણ કે આ સિરિયલમાં આપણને ફૂલ્લી એન્ટરટેનમેન્ટ સિરિયલ છે, બધું જ જોવા મળે છે. કોમેડી, ડ્રામા, ફેમિલી, એવરીથિંગ. અને એટલું કહી શકાય છે કે ક્યાંક બધા જ લોકો જમતી વખતે આ જ સિરિયલ જોવે છે. જ્યાં હું વાત કરી રહી છું આજે સિરિયલ વાગલે કી દુનિયા, નઈ પેઢી નए કિસ્સે. જી હા, અને આ નામ પણ એટલા માટે છે કારણ કે આ જ સિરિયલ આપણે પહેલા પણ નિહાળતા હતા, અને પછી એક બ્રેક પછી ફરી એક વખત આ સિરિયલ ઓન ડિમાન્ડ શરૂ કરવામાં આવી છે. પણ હવે નવા કિસ્સાઓ સાથે, નવી પેઢી સાથે વાત કરીશું વધુ આ સિરિયલ વિશે. આ જ સિરિયલના ક્રિએટર એન્ડ પ્રોડ્યુસર જેડી મજેડિયાજી સાથે, અને સાથે જેમને આપ રોજ આ સિરિયલમાં જુઓ છો, એટલે કે રાજેશ વાગલે અને વંદના વાગલેની ડોટર સખી વાગલે, એટલે કે ચિન્મય સાલ્વી આપણી સાથે છે. ત્યારે વેલકમ ટુ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. નમસ્તે, થેન્ક યુ. નમસ્તે. જેડીભાઈ, અત્યારે તો સૌથી પહેલા જે રીતે આ સિરિયલ ચાલી રહી છે, આમ એવું કહી શકાય ચાલી નથી રહી, ધમધમી રહી છે ભાઈ. લોકોને બહુ જ મજા આવે છે આ સિરિયલ જોવાની, કારણ કે આ સિરિયલથી બધા જ લોકો પોતાને કનેક્ટ કરી શકે છે. કોમન મેન જે હોય ને, આપણા ઘણા બધા લોકો જે મિડલ ક્લાસ લોકો છે, એ લોકોના જીવનમાં રોજબરોજ શું ચાલતું હોય છે ને એ જે પડકારો આવતા હોય એને કઈ રીતે હસતા હસતા સહન કરવું અને તો પણ હસતા જ રહેવું, એ કંઈક આ સિરિયલમાં બતાવવામાં આવે છે. લાગે છે કે જેડી મજેડિયાજી અહીંયા આ સિરિયલમાં બધા જ લોકો પોતાને ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટ કરી શકે છે, એટલે જ આપની સિરિયલ જે છે એ એકદમ હોટ ફેવરેટ બની ગઈ છે. બહુ સાચી વાત છે. અમે વર્ષોથી બહુ સારી સિરિયલ્સ બનાવી. તમે જાણો છો, અમારી ખીચડી, સારા વર્ષે સારાભાઈ, બાબુર બેબી, બડી દૂર से આથી મળીને કેટલી સક્સેસફુલ સિરીઝ બનાવી. પણ છે ને, જેમ સમય બદલાય ને એમ લોકોનું, આજના જે લોકો છે એનું એક્સપેક્ટેશન બદલાય ને. ખાસ કરીને આપણી જિંદગીમાં એક ચેન્જ આવ્યો કોવિડ પછી. કોવિડના 2 વર્ષ એવા ગયા ને કે આજે જુઓ ને, લોકો નવરાત્રિમાં કઈ રીતે નીકળ્યા છે. 2 વર્ષ પછી મળી છે તો લોકો જે એન્જોય, લોકોને એ પ્રકારનું એક્સપેક્ટેશન હતું કે હવે જે કોઈ શો આવે, જે કોઈ સિરિયલ આવી એવી જબરદસ્ત આવે તો જ જોડાઈએ. તો વાગલે કી દુનિયા જ્યારે આવી અને લોકોને લાગી આ કેટલી રિયલ છે, આપણી જિંદગી જોડે કનેક્ટ કરે છે, આપણી વાતો કરે છે, આપણા જેવા પાત્રો છે, અને આ કેટલી પોઝિટિવ છે, આ ઇન્સ્પાયર કરે છે, હસાવે છે, મજા કરાવે, તો લોકોએ પહેલી ઘડીથી, પહેલા દિવસથી વાગલે કી દુનિયાને એટલો પ્રેમ આપ્યો, એટલી એક્સેપ્ટ કરી, કારણ કે એનામાં બધું હતું. અને ઇટ વોઝ ધ મોસ્ટ, હું કહીશ બધાથી અલગ સિરિયલ જે છેલ્લા 2 વર્ષમાં આવી એ હતી વાગલે કી દુનિયા. કેમ? એ આપણા બધાની છે. પૈસાવાળા કે ગરીબ એવું કંઈ નથી હોતું. આપણા બધામાં એક મિડલ ક્લાસ મેન્ટાલિટી હોય. જો આજે ગમે એવું છે ને, બધું છે મારી પાસે, પણ હું મિડલ ક્લાસ જ છું, કેમ કે એના જેવી લાઈફ કાંઈ જ નથી. તો એ આ પરિવારને જે રીતે રેપ્રેઝન્ટ કરે છે, એમાં નવું ફોર્મેટ, અમે એને ટ્વેબ સિરીઝ કહીએ છીએ કે ટીવી બી છે ને વેબ સિરીઝ બી. કેમ? તો કે દર 1, 2, 3 એપિસોડમાં વાર્તા પતી જાય, બસ લાંબુ ખેંચવાનું નહીં. એવું જ જોવાની મજા આવે છે કે દરેક સ્ટોરી પતી જાય, એક મેસેજ જાય, પછી બીજી સ્ટોરી ચાલુ થાય છે. બધું લાંબુ ખેંચાય છે. ઓલમોસ્ટ અત્યારે એનું ટ્રેન્ડ પણ નથી ચાલતું છે. એટલે બધું પેકેજ જુઓ ને મનોરંજનનું, તો એ વાગલે કી દુનિયામાં છે. અને એ કરવાની એટલી મજા આવે છે. હમણાં જ વાત કરતા હતા કે વાગલે કી દુનિયા વિલ બી લાઈક શેલ્ફ વેલ્યુ કહે ને, જે વર્ષોના વર્ષો જોવા છે. કારણ કે અમે જે ઇશ્યુઝ લઈએ છીએ, જે સ્ટોરીઝ લઈએ છીએ, જેને માટે મને લાગે છે તમારે સખી વાગલે, ચિન્મયને પૂછવું જોઈએ, ત્યાંથી આપણે વાત આગળ પૂછીશ. પણ મને પહેલા એ જાણવું છે કે આ છોટા પેકેટને આપણે પસંદ કઈ રીતે કર્યું, આ રોલ માટે ખાસ કઈ રીતે તેમની પસંદગી કરવામાં આવે છે? કારણ કે બડી દૂર સે આયે હે શોથી કદાચ તમે કનેક્ટ થશો બીજા બધા કાસ્ટની સાથે, તો એમને તમે કઈ રીતે પસંદ કર્યું છે આ સિરિયલ માટે? આ રોલ માટે છે ને, મારા મનમાં એક એવી વ્યક્તિ હતી કે જે છે ને મિડલ ક્લાસને સરસ રીતે રેપ્રેઝન્ટ કરી શકે, જેનો સોલ પણ મિડલ ક્લાસ હોય, જે ફેમિલીમાં માનતી હોય, અને સાથે સાથે આજની તારીખમાં આજની પેઢીને પણ કનેક્ટ કરી શકે, અને જેના ડ્રીમ્સ હોય, અને જે બહુ જ સરસ દેખાતી સારી એવી એક છોકરીઓ, જેનાથી તમે બધી રીતે ઇન્સ્પાયર પણ થઈ શકો. તો એવી છોકરીની જે શોધ ચાલતી હતી, અને મેં બહુ બધી ઓડિશન જોઈને એક દિવસ મેં આ ચિન્મય સાલીની ઓડિશન જોઈને મેં કીધું આ છે સખી વાગલે. એક દિવસમાં એ પછીથી અમારા મનમાં, ને મને ઘણીમાં ચેલેન્જીસ હતી કે આ નામ હું નહીં, આઈ વોઝ સો શ્યોર કે આજ કરશે, આજ કરે. અને
then is the चिन्मय history. તમારો કેવો आपका कैसा अनुभव रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आपको इस रोल के लिए पसंद किया गया? हर एक कलाकार के अंदर अपनी कला दिखाने के लिए उसे एक परफेक्ट रोल चाहिए होता है, कह सकते हैं यही वो परफेक्ट रोल है आपके लिए? जी, सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि केम छो अहमदाबाद, मजा माने? ग्रेट। तो मैं गुजराती बोलते बोलते रुक गई और इन्होंने गुजराती से शुरुआत की। मुझे लगा शायद ये गुजराती नहीं बोलेंगे, लेकिन गुजरातियों के दिल पे राज करने के लिए गुजराती तो बोलनी ही पड़ती है। जी क्यों? जी जी जी। तो मजा माने। ओके, तो હું જવાબ આપી દઉં તમારા બદલે. અરે બહુ મજામાં, તમને જોઈને વધારે મજામાં થઈ ગયા છે. अरे बहु सो जब अभी थैंक यू जेडी सर कि आपने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता चला कि मैं सखी वागले का रोल करने वाली हूँ, तो सच में मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, या मैं सच में रिप्रेजेंट कर पाऊँगी यूथ को। तो सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग सखी, सो आई हैव एक्सप्लोर्ड so many emotions, मतलब discovering from teenagers bond with parents, suddenly discovering sensitive issues and with grandparents, and suddenly become a mature girl with her handling younger brother. So yeah, बहुत मज़ा आया। और एक ही एपिसोड या एक ही सीन के बारे में बोलना चाहूँ तो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे खुद के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सखी वागले के वजह से। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि क्या चेंजेस देखे आपने अपने अंदर, क्या चेंजेस देखे जब एक मिडिल क्लास गर्ल और जिसकी एक ऐसी स्टोरी जो हर यूथ को एक मैसेज देती है, तो आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए इसको देख? फर्स्ट ऑफ ऑल सखी वागले और चिन्मयी साळवी बोथ आर रिलेटेबल, मतलब बोथ आर फैमिली ओरिएंटेड। सो मतलब मैं खुद चिन्मयी साळवी भी कोई डिसीजन लेना हो या कोई किसी चीज़, मतलब इनडिसाइसिव हूँ मैं भी कि कुछ चूज़ करना हो तो मुझे नहीं समझ में आता। तो ये सखी वागले भी वैसे ही है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स भी और सखी वागले के पेरेंट्स, मतलब मेरे मम्मा और डैडी दोनों सेम है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ें, या मुझे कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हो तो मुझे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो यस, तो कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं समझती है, हम लोग बोल जाते हैं पेरेंट्स को कि नहीं ये नहीं अच्छा लगता। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि शो करते करते खुद पे आपके अंदर भी ये चीजें खुद से आने लगे हैं, तो घर पे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए या इसका बुरा लग सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ होना वो इस शो से मेरी हुई है। तो जी जी जी, और मुझे लगता है कि ये मैसेज लोगों को भी जाता है घर तक, तो सारे ही यूथ शायद अपने अंदर ये सीरियल देख के एक चेंज महसूस करते हैं। ચડી જઈ અત્યારે એવું કહી શકાય છે કે કદાચ આ એક સરસ મેસેજ આપવા માંગો છો આપ આ સિરિયલ થકી, જે રીતે દરેક એપિસોડમાં એક નવી સ્ટોરી હોય છે, તે રીતે કોઈ એપિસોડમાં એવું બતાવવામાં આવે કે વર્કલોડ અને સાથે જ ઘરનું ટેન્શન બંને ભેગું થાય તો શું થાય, પેરેન્ટ્સ અને એની સાથે છોકરાઓની વચ્ચે કોઈ તકલીફ થાય તો એને કઈ રીતે ટેકલ કરવી। એટલે કદાચ આપણે એવું માની શકીએ કે આપનો મોટો ઉદ્દેશ્ય જ આ સિરિયલ થકી એક એવા મેસેજીસ આપવાનો છે કે જેનાથી સમાજમાં પરિવર્તન આવી શકે, લોકોની માનસિકતા ન હોય એવી, તો એ લોકોની ક્યાંક માનસિકતા સુધરી શકે ને એ આપણે કરી રહ્યા છે એવું કહી શકાય છે। બિલકુલ, જો અમારા શો છે ને હંમેશા આમ પ્રોગ્રેસિવ રહ્યા। આ શોમાં છે ને હું એમ બહુ માનું છું, ઇમ્પેક્ટિંગ લાઈવ્સ કહીએ ને જેને, કે શો તમારી જિંદગી પર અસર કરી શકે ને સારી કરી શકે। તમે વાગલી की दुनिया में કેટલા મેસેજીસ અને ટ્વિટર 2-3 વાર તો ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ થયું। ટીવી શો માટે બહુ આસાન નથી તું ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ થવું। 2021ના ટોપ 10 શોઝમાં જે સૌથી વધારે જોવાયેલા શોમાં વાગલી की दुनिया આવ્યું। અને સૌથી વધારે કારણ શું હતું કે આ છોકરાઓને પણ બતાડી શકો, નાના બાળકોથી લઈને 80 વર્ષના મા બાપ છે, તો બધાની જિંદગીમાં છે ને આ એક નવી વસ્તુ, એક જીવન જીવવા માટે નવો મેસેજ રોજ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, બહુ પોઝિટિવલી ઇમ્પેક્ટ કરે છે। લાઈવ તમે તમારી રોજ આ જુઓ ને, તમને તમારા જીવનમાં આવતી તકલીફોને એડ્રેસ કરી શકો। હું 2-3 વસ્તુ હું બોલું તો આઈ વોન્ટ સખી ટુ સ્પીક અબાઉટ હર કપલ ઓફ ફેવરેટ એપિસોડ્સ, કે અમે છે ને ગુડ ટચ બેડ ટચ નામનો એક એપિસોડ કર્યો હતો, જેમાં સરસ આમને આવી હેડકી બહુ યાદ આવે કે તમે યાદ કરો છો એટલે એટલું કરે છે, સરસ છે, કાયમ છે। આની પર બી અમે એપિસોડ કર્યો હતો। હવે ગુડ ટચ બેડ ટચમાં છે ને આપણા બાળકો છે ને બહુ અસુરક્ષિત રહે છે, એટલે બધું છોકરીઓ જ અસુરક્ષિત, એવું નથી, છોકરાઓ પણ અસુરક્ષિત હોઈ શકે છે। આવા ઇસ્યુને કોઈ અડતું નથી। મંથલી સાયકલને કેવી રીતે એડ્રેસ કરવો,
એ પણ કર્યો અને કેટલા સમાજ સુધારક ઇશ્યુઝ અમે એડ્રેસ કર્યા છે. લેટ સખી સ્પીક ઓન વન ઓફ ધ जी ઇશ્યુઝ. जी 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 चिन्मय, यहाँ जब ऐसे सारे मतलब स्टोरीज होते हैं, ऐसे जो मैसेजेस जाने होते हैं, बहुत ही इजी वे में ये मैसेजेस लोगों को यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, तो जी। आपके पास जब स्टोरी आती है वो कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है हर एक एपिसोड को ले करके? और ये भी जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट कौन सी स्टोरी रही है, कह सकते हैं, क्योंकि हर बार कुछ स्टोरी बदलती है. आपका फेवरेट मोमेंट या फेवरेट स्टोरी कौन सी? मैंने जैसे बोला कि कोई एक एपिसोड, मुझे मेरे सारे एपिसोड अच्छे लगते हैं फ्रैंकली जी, स्पीकिंग, जी, क्योंकि जी. उसके ऊपर आपको ही बहुत- नहीं, सभी को सारे एपिसोड्स अच्छे लगते होंगे, तभी इतनी हॉट फेवरेट चल रही है. या मुझे भी मेरे सारे एपिसोड नहीं, सबसे पहले जब स्टोरी आती है तो जेडी से डिस्कस करते हैं उसके ऊपर. हमें 1-on-1 मतलब वो इतने दे मेक फील वेरी कंफर्टेबल कि स्टोरी के साथ, या वो इतने एफर्ट्स लेते हैं हमारे ऊपर कि ये ऐसी स्टोरी है, इसको इस तरह सोचना चाहिए. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब स्टोरी आती है, हमें स्क्रिप्ट आती है, तो मैं रात को पढ़ती हूँ, तो एक चीज़ ऐसी होती है कि ना वो आपको सोचने को मजबूर ही करती है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते कि हाँ एक स्टोरी आई और कर दिया. सो मेरी फेवरेट स्टोरी थी सखीज़ एक्स्ट्रा कमरा, जहाँ पे टीनेजर्स को लाइक हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, और बहुत ही कॉमन समस्या या। यहाँ ऐसा बोल सकते हैं टीनेजर्स की आज के समय पे. वो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नीड हो गई है कि प्राइवेसी चाहिए. अगर घर छोटा भी हो, फिर भी फ़ोन के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन प्राइवेसी चाहिए होती है. और सगी ठहरी मिडिल क्लास लड़की, तो मैं खुद भी, चिन्मयी साड़ी भी मिडिल क्लास है. सो तो और वो वाला एपिसोड के बारे में, समय थोड़ा सा कम है लेकिन वो वाला एपिसोड के बारे में भी जानना चाहेंगे. सोशल मीडिया का जो पागलपन आपके सिर पर सवार हुआ था, जैसे आप फोन को लेकर पूरे सीरियल में घूमती हुई नजर आई थी, तो सच में भी ऐसा कुछ है? એને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરજો, chinmayi._salvi, પછી જોજો. उससे पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी. नहीं, बट सीरियसली वो एपिसोड शूट करते टाइम ना, मतलब हम लोग मुंह छुपा रहे थे कि ओ गॉड ये करते हैं, और मैं ही अभी खुद बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए. એ સ્ટોરી મેં એના પરથી ઇન્સ્પાયર થઈને જ કરી હતી. આ જલકુ कभी कभी ऐसा डर लगता है कि यार ये करने से जेडी सर सच में इसके ऊपर भी एपिसोड बना दें. बीच में मैंने ओके wait ओके, किया अभी था. अभी आप गुजरात आए हैं और आपके और મને છે भी ને, सरकार sorry, से पहले मुझे मैंने एक मिला है. बात- और जी जी जी, मैंने तो सखी आप माटे एक बात गुजरातियों केवी को- छे. जी जी जी, गुजरातियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे को एक बात सखी के लिए बोलनी है और आप हाँ. लोगों के लिए भी बोलनी है, क्योंकि सखी ने एक बात की ना, उससे मुझे जैसे उस सखी का एक्स्ट्रा कमरा एपिसोड हुआ था ना, वागले की दुनिया जिस तरह मैंने कहा ना पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है हाँ लाइफ जी. पे, उसकी खुद की लाइफ पे एक बड़ा इम्पैक्ट आया. अभी थोड़े दिन पहले उसने मुझे कुछ दिन पहले बोला था, जो मुझे कि आप में भी काफ़ी लड़के ऐसा सोच रही होगी, जैसे इसको अपना एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए था ना, तो वहाँ से उसकी एक जर्नी, उससे एक ड्रीम देखा कि मैं सिर्फ मेरे बारे में क्यों सोचती हूँ, मुझे एक घर लेना है, मेरा अपना घर, मेरे मम्मी पापा के लिए. ग्रेट ग्रेट. तो वागले की दुनिया से उसकी जो सर है, आई वाज सो प्राउड ऑफ हर. आई सेड वी विल पुट इन एवरी एफर्ट टू अचीव दैट. Yes, वाह. yes. तो Great. ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप सब भी सखी से इंस्पायर होकर, चिन्मयी साली से इंस्पायर होकर, ऐसा ड्रीम देखकर पूरी कोशिश करिए और उसकी जर्नी को ऑब्जर्व करते रहना. कोशिश You'll get तो lot of ये लोग कर inspiration. लेंगे, लेकिन उनको हर किसी को जेडी मजेटिया सर नहीं मिलेंगे ना, दिक्कत that भी वो is हो true. जाएगी. I'm really grateful तो for it. गुजरातियों के लिए एक बार एक गुजराती गरबे के साथ हम एक ब्रेक लेंगे. तो आप दोनों यहाँ आए हैं गुजरात में, तो अब गुजरातियों को बताइए कि आप उनके साथ कितना टच फील करते हैं. तो कुछ गुजराती हो जाए जेडी सर. ओके, તમને ના પડાય? जी 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 जी, तो एक गुजराती गरबा हो जाए जेडी सर आप दोनों के साथ. એને મેં જી. કહ્યું છે તૈયાર છે, હોશિયાર છે, રેડી રિહર્સલ કરીને આવી છે. चलो 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 Okay, जल्दी. okay. जी जी, स्टार्ट. Odin. No, you start. ઓઢણી ઓઢું ઓઢુને ઉડી જાય, ઓઢણી ઓઢું ઓઢુને ઉડી જાય. ના ના રે કહેવાય, ના ના રે સેવાય, ના ના રે કહેવાય, ના ના રે સેવાય, મારા હૈયામાં કાંઈ કાંઈ થાય, ઓઢણી તો આ જ ઓઢું રીતે ઓઢુને અત્યારે, ઉડી જે રીતે આ જાય. લોકો ગુજરાતી ગરબાને પસંદ કરી રહ્યા છે, તે એ જ રીતે આ બધા જ લોકો એમની સિરિયલને પસંદ કરી રહ્યા છે. આ સિરિયલ વિશે વધુ જાણવાનું છે. ભાઈ, આપ સિરિયલના હવે મેઇન જે
કપલ્સ છે જે એવું કહી શકાય કે જે લીડ રોલ કરી રહ્યા છે એમની સાથે પણ વાતો કરવાની છે એટલે અમને બાય બાય કહેવું પડશે. તમને બહુ જ મજા આવશે, trust me. ચિન્મયજી આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ધન્યવાદ. शाम को प्लीज हमारे साथ आना गरबा खेलने. હા, અમે 3 જગ્યાએ જવાનું છે, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત અને 2-3 જગ્યાએ. પ્લીઝ ટ્રેક ડાઉન અને પ્લીઝ આવજો ને થેન્ક યુ પિનચ, થેન્ક યુ GTPL. ચાલો, હવે We સમય love you થયો all. છે એક બ્રેકનો. બ્રેક બાદ ફરી આ સિરિયલ વિશે વધુ વાત કરીશું. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે ફરી એક વખત સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં. વાત કરી રહ્યા છે વાગલે કી દુનિયા આ સિરિયલની. અને બ્રેક પહેલા જ્યારે મેં આપને કહી દીધું હોય કે હવે આપને બ્રેક બાદ પછી મુલાકાત કરાવવા જઈ રહી છું મેઇન લીડ રોલમાં જેઓ બંને, એટલે કે અત્યારે એવું કહી શકાય કપલ ગોલ્સ જેમને કહી શકાય છે. તો જેમની વાત મેં પહેલાં કરી દીધી હોય, ચોક્કસપણે આપ લોકો એ બંનેની રાહ જોઈ રહ્યા હશો. તો જી હા, આપને બહુ રાહ નહીં જોવાડું. એ આપણી સાથે અત્યારે આવી ચૂક્યા છે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં. આપણી સાથે ગુજરાત ન્યૂઝમાં સુમિત રાઘવનજી એન્ડ પરિવાર પ્રણતિ આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે. તો રાજેશ વાગલે એન્ડ વંદના વાગલે, કદાચ આ કહીશ તો વધારે ફેમિલિયર ફીલ થશે. વેલકમ ટુ गुजरात न्यूज टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच पीनट. सुमित जी, क्या कहेंगे? गुजरात आए हैं, आपकी सीरियल को इतना प्यार मिल रहा है गुजरातियों से ही नहीं, वैसे तो पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन गुजरात आए हैं तो मैं गुजरातियों की बात कर रही हूँ. मैं कहना चाहूंगा कि गुजरातियों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत प्यारा रिश्ता है, क्योंकि मेरे सारे प्रोड्यूसर से गुजराती रहे हैं. तो मेरे घर में जो पैसा है वो गुजराती है. फिर विपुल शाह हो या फिर हेमल ठक्कर हो या फिर हमारा जेडी मजेठी आतिश कपाड़िया हो. इट्स अ कोइंसिडेंस या गुजरातियों के लिए कोई खास प्रेम है आपको? बिल्कुल बिल्कुल. मैंने एक गुजराती नाटक किया था बापू तमे कमाल करी, जिसमें मैं, दिलीप जोशी, हम सबके प्यारे जेठा और अमित मिस्त्री, तो उसके मैक्सिमम शोज हमने गुजरात मतलब अहमदाबाद में किए. मतलब इतना हिट हुआ अहमदाबाद में कि हम लोग महीने में हफ्ता अहमदाबाद में आकर रुकते थे. फिर ठाकुर भाई हो या फिर टागोर हो या फिर टाउन हॉल हो, यहाँ पर हमारे शोज होते. इसीलिए शायद बोल सकते हैं कि आपका अहमदाबाद आना भी बार बार हो रहा है और इसीलिए गुजराती इस सीरियल को बहुत पसंद कर रहे हैं. क्या कहेंगे परिवार जी, आपका क्या गुजराती कनेक्शन, आपका भी कोई गुजराती कनेक्शन है? गुजरात आई हैं. मैं जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे, ही इज अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर. तो तब मुझे यहाँ बहुत आना पड़ता था. अरे वाह. एंड मैं बहुत इंजॉय करती थी क्योंकि अलग ही माहौल है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ और यहाँ आके देखो तो यहाँ लड़कियों को इतनी फ्रीडम थी और रोड पे इतने कॉन्फिडेंस से घूमती थी. उस टाइम पे दिल्ली में उतने अच्छा माहौल नहीं था. जी. सो मुझे यहाँ की लाइफ इन जनरल बहुत अच्छी लगी थी जी. और गुजरातियों को आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस सीरियल में. तो सुमित जी, आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी है, वैसे तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हम आपको पहले भी सीरियल में देख चुके हैं, एक मिडिल क्लास जो एक फैमिली है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो इस सीरियल में दिखाई जा रही है, आप कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट कर पाते होंगे और सारे लोग जो भी सीरियल्स के व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पाते हैं. आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सीरियल को लेकर? मुझे लगता है कि हमारे देश की जो नस है ना वो मिडिल क्लास है. मतलब हम सब स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं. ऐसा बहुत कम लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं. वी ऑल हैव स्ट्रगल्ड. हमारे एथिक्स है, हमारे संस्कार है और ये हमारी नींव है. भारतीयत्व की ये नींव है कि हम जो भी हैं वो आज अपने बलबूते पर सच्चाई से और मेहनत करके और अपने कठिन परिश्रम से यहाँ पर पहुँचे. तो मुझे लगता है कि वागले की दुनिया की ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदमी सुबह 9 बजे उठकर काम करने जाता है, जिसकी बीवी है वो घर भी संभालती है, आजकल करियरिस्टिक वुमेन्स भी है तो वो बाहर जाकर काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, सास ससुर संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं. तो देखिए ऐसे अलग अलग पहलू हम सबकी ज़िंदगी में आए हैं और वागले की दुनिया उसी को रिप्रेजेंट करती है. आई मीन आर के लक्ष्मण साहब का ये जो कॉमन मैन है वो हम सब में कहीं ना कहीं जिंदा है और इसीलिए से वागले की दुनिया जो है वो कनेक्ट कर पाती है. जी. परिवार जी, आपके जो मतलब सुमित सर के साथ जो खास केमिस्ट्री यहाँ देखने मिल रही है, कपल गोल्स, इसलिए मैंने कहा कि अभी ये कह सकते हैं आप दोनों को, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी जानना चाहूंगी. ऑफ स्क्रीन अरे समझ सीरियस हंसी आ रही है. बोलो. ऑफ स्क्रीन यही होता है. हम एक्चुअली ओके, मैं एक चीज मेंशन कर रही हूँ. तो जैसे जंगल में माहौल सडनली चेंज कब होता है? जब मोर नाचता है. तो
तो हमारे सेट पे मैंने इनको एक पर्सनली नाम दिया है मोर का, क्योंकि ये जब सेट पे अच्छा। घुसते हैं तो लोग उसके पहले शायद सीरियस बैठे होंगे, ये गाना गाते हुए घुसेंगे, उसके बाद ये ऐसे ऐसे, और लोग भी इनको देख के गाना गाने लगते हैं आजकल। हमारे Okay. सेट के जैसे जो टेलर हैं वो अदरवाइज कभी स्माइल करते हुए नहीं दिखे थे, लेकिन कल मैं इनके पीछे जा रही थी शॉट के लिए और सडनली मैंने देखा कि वो नॉर्मल आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने इनको देखा वो एकदम ऐसे ट्विस्ट करके डांस करते हुए सुमे तो ऐसे करके मतलब स्टेज पर भी फुल ऑन मतलब एनर्जी रहती होगी और एंटरटेनमेंट फुल जब वो कट होता है तब भी एंटरटेनमेंट चलता ही जैसे ही रहता है। कट होता है उसके बाद हमारा दूसरा माहौल शुरू होता है, उसके बाद गाने बजने लगते हैं। तो हमारे आजकल टीम ऐसी हो गई कि जो बेसुरे सिंगर्स हैं वो भी उतने ही शौक से गाने अरे लगे सुमित हैं। सर एक गाना हो जाए तो फिर ऐसे एंट्री लेते हैं, अंदाज थोड़ा हम भी तो देखें। हम पढ़ते थे पर तो आपको देखते हैं बड़े कल ही जो सीरियस अजगर ने सुना है, वही और सुना हाँ, वो हमारे जी। हमारे हमारे टेलर है। तो मैं कल ऐसे जा रहा था, सडनली ऐसे पुकारता हूँ मैं गली गली बहार की, फिर मैंने गाना गाया बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। ऐसे प्यार किया है तो वो शर्मा है अच्छा। पुकारता। सर सिंगिंग में भी कभी दिया था क्या ऑडिशन? हाँ हाँ, हमने 100% दिया होगा। देखिए देखिए, ऐसा है ना कि ये वन मैन आर्मी है। हाँ, कभी भूखा नहीं रहूंगा मैं। अगर एक्टिंग नहीं तो गाना गाकर पेट पर। अच्छा, हमारे सेट पे एक चीज जो बहुत कॉमन है, हाँ। अच्छे गाने तो अलग चीज है, पर कोई कुछ अगर फंबल कर गया या कुछ हाँ। ऐसा भलता वर्ड बोल गया हाँ। तो ये और सखी हाँ ये लोग सब ऐसे ना उस पे कुछ गाना बना उस पे देंगे। गाना। कल भारती मौशी जो इनकी माँ बनी है राधिका, वो इनको पीट रही थी क्योंकि हाँ। इन्होंने तकिए पे गाना हाँ, हाँ। गा दिया था। क्या क्या था? चलिए हाँ, साढ़े तकियो ओ वासे यार रे थाड़, ऐसे कुछ रैंडम भी बनता है। कुछ भी वर्ड आ जाता है मतलब तो उस पे बहुत सब- ही मजा आता होगा, ये हम अभी बिल्कुल। देख सकते हैं। आप बहुत। दोनों के अभी की केमिस्ट्री देख के हम ये बोल सकते हैं। परिवा जी, आपका कोई फेवरेट सीन जो आप शेयर करना चाहती हूँ जिसमें आपको बड़ा ही मजा आया, हमेशा आपको याद रहेगा? वैसे तो मेरे- हर कोई ये कहता है कि हाँ। सब फेवरेट ही सीन्स है, लेकिन फिर भी क्या memorable। है ना, वागले में क्योंकि इतनी तरह की स्टोरीज हैं कि एक कुछ उठाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी लगता है ये इससे अच्छा क्या होगा, तब तक कुछ और एपिसोड आता है। हाँ। और ऑल क्रेडिट टू जेडी सर, आतिश सर एंड द राइटर्स And the writers, absolutely. एंड अपने हमारे जो डायरेक्टर हैं समीर सर, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते। मतलब एक नॉर्मल दही को लेके अगर कोई एपिसोड बन सकता है और वो इतना खूबसूरत हो सकता है, जी जी जी। तो जो आप घर पे मिस कर जाते हैं चीजें, उन चीजों को लेके। लेकिन अगर एक मेरा फेवरेट सीन होगा तो उसमें मैंने शायद कुछ वर्ड ही नहीं बोला था, वो था अन्न का अपमान करके हमने एक एपिसोड किया था जी। जिसमें ये अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। और मुझे याद है कि वो अन्न के ऊपर था कि कैसे एक दोस्त इनका छोटे छोटे चावल के दाने, वो गेहूं के दाने चुनता था जो गिर जाते थे रोड पे। और मुझे याद है उस दिन सेट पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। हाँ, और ये हमारे सेट पे बहुत रेयरली होता है। Okay, क्योंकि जब great. वो लाइंस आ रही थी, आई थिंक सबकी आंखों में आंसू थे। वाह। सब अपने उस स्ट्रगल पीरियड को शायद याद कर रहे थे। जी जी जी। सुमित सर, ऐसा लगता है कि इसकी हर एक स्टोरी में कहीं ना कहीं आप लोग सभी अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जैसा अभी परिवार ने कहा ना, वैसे और एक स्टोरी थी जो थी कुछ भी। हम नॉर्मली जब मम्मी पूछती है कि अच्छा अब खाने में क्या बनाओ, और हम जाते थे हाँ कुछ भी बनाओ, जी जी जी, है ना, ये exactly। कुछ भी जो है ना, ये मैंने अभी अभी अपने आप को कनेक्ट किया। है ना, तो जी, जी। तो फिर हाँ। वंदना एक आइडिया निकालती है, अच्छा आपको कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी खाएंगे ना, ठीक है, तो कुरमुरे, चना और भिंडी, कुछ भी, ये वाह, प्लेट पे लाकर रख दिया। great। तो हम बोलते हैं ये क्या है, आप ही ने कहा कुछ भी, ये लो कुछ भी। तो जितनी गृहिणियां हैं वो याद रखें, अगर आपका पति या आपका बेटा आपसे कहा मम्मी कुछ भी बनाना है, तो फिर ये खिलाना, कुरमुरे, चने और भिंडी। उसके बाद से अगले परिवार में कोई कुछ भी नहीं कहता है। मुझे लगता है बाकी के घरों में भी बंद हो गया होगा कुछ भी बोलना, क्योंकि हर एक सीरियल में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज जाता है जिससे लोग अपने आप में एक जी। चेंज देखते हैं। जी बिल्कुल। सुमित जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है उसके लोग फैन हैं, जी। क्या है उसकी खास वजह? परिवार जी, ये जो डायलॉग्स आपके सामने भी हमेशा बोलते हैं, उनके अंदर उनको जब देखते हैं उनमें जो कॉमन मैन दिखता है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, क्या रीजन है इसका सर? मतलब बहुत ही अच्छी डायलॉग डिलीवरीज होती है आपके हर सीरियल्स में। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन मुझे लगता है कि जो राइटर्स लिख कर लाते हैं, या जैसा आपने अभी कहा कि जो अनुभव हम आज मैं
37 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, 37 ईयर्स। तो जो आप देखिए, आप राह चलते चलते बहुत सारी चीजें आप अपनी तिजोरी में डालते रहते जी, हैं, जी, आपकी जी। पोटली में डालते रहते हैं, वो जो अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव कहीं कहीं आपके डायलॉग डिलीवरी में आ जाते हैं। तो हमारे जो राइटर्स लिखते हैं वो हम लोग भी चेंज करते हैं, हमें लगता है कि नहीं इसको और थोड़ा और पॉइंटेड करते हैं, है ना। जी। परिवा भी ऐड करती है, समीर ऐड करता है, जी, मैं जी। ऐड करता हूँ, जी। तो मुझे लगता है कि वो बनते बनते बन जाता है। जी, दूसरे जो आपके साथ कैरेक्टर्स हैं वो भी सारे काफी एंटरटेनिंग है और काफी अच्छी तरह से सारे जो भी आपके मतलब मैसेजेस देने होते हैं, उनके जो भी रोल्स होते हैं वो भी काफी एंटरटेनिंग लगते हैं। उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे परिवा जी? एक्चुअली जो सेट का माहौल है ना हमारे, तो हमको 2 महीने के लिए जब शूटिंग लॉकडाउन के टाइम पे गुजरात में आके हमने इनफैक्ट हाँ, शूटिंग की। सिलवासा आए थे। अरे वाह, सिलवासा आए थे। तो गुजरात ने इतना एक्चुअली उस टाइम पे हमें शूट करना बहुत डेस्परेटली ज़रूरत थी हमें, और उस टाइम पे गुजरात ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। सो यहाँ आके हमने 2 महीने एज अ टीम एक साथ निकाले एक रिजॉर्ट में, और उस टाइम जो हमारे बीच में बॉन्ड बना ना, वी बिकेम अ फैमिली। तो हम अभी भी ऐसा होता है कि हम जब सब मिलते हैं तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि कि अलग अलग परिवारों से आए हुए लोग एक जगह मिले हैं। Great. ये सच में इसी फैमिली में रहते हैं, ये सच में इनके पड़ोसी हैं, इनमें ऐसी ही लड़ाई होती है, ऐसी ही दोस्ती है, जी। ऐसा माहौल है। जी, गाने बजते हैं। और मैं अगर सच कहूँ तो अगर आपको काम पे रोज सुबह हमारा काफी हेक्टिक रहता है, लेकिन रोज सुबह आपका मन ऐसे खुशी से करे ना कि अरे काम पे जाना है, बागले की शूट पे जाना है, उससे बेटर माहौल नहीं बन वाह, सकता आपका। ग्रेट। इससे ज्यादा जब हम अपने काम को प्यार करें ना, Right. तो उससे ज्यादा अच्छा शायद जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। Yes. तब लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। सर बिल्कुल। तो गुजरात आए हैं, गुजराती खाने के बारे में, गुजराती गाने के बारे में, गुजराती गरबे के बारे में कुछ कहेंगे? अरे बिल्कुल, मतलब आज शाम को देखिए वाइब्रेंट गुजरात में हम आ रहे हैं, माय एफएम और रेड एफएम के दांडिया में हम जलवे नाच- दिखाने। जलवे दिखाने सर जा रहे कोई हैं। गुजराती गाने के साथ एंड करना चाहेंगे? गुजराती गाना कौन सा गुजराती गाना? वही गाते, ओढ़नी ओढ़ी उड़ने चली जी, जा। गुजरातियों को गुजराती में कह दीजिए ये सीरियल आपकी जितनी पसंद आ रही है ऐसे हमेशा लोगों को पसंद आए। गुजराती में हो जाए सर, सीरियल આ સિરિયલ રાત્રે 9 થી 9:30 જરૂરથી જોજો। जरूर जोजो। जो मैम आप उनको सिखा रही हैं, आपका नंबर भी है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे उसने तो कैरेक्टर किया है पूरा जी गुजराती। जी जी मेरा जी। बस होता था हाले हमें। चलो तो अभी समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप लोगों के साथ बात करने का बहुत ही मजा आया। सीरियल देखने का तो मजा आता ही है, लेकिन आज आपने कुछ पर्दे के पीछे की जो बातें लोगों को बताई है, उससे लोग और ज्यादा इस सीरियल को कनेक्ट कर पाएंगे, और ज्यादा इस सीरियल को प्यार मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और ये सीरियल इसी तरह से लोगों को पसंद है ऐसी आशा Thank रखते you, हैं। हमारे thank साथ you. जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank यू। you जाते so जाते much. आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी Yes. शुभकामनाएं। થેન્ક યુ। તો દર્શકો સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આજે વાત કરી છે વાઘલી કી દુનિયા, જે સિરિયલ અત્યારે ચાલી રહી છે, આપ લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહી છે, અને હોપ કે આપ લોકો આજે રાત્રે ફરી એક વખત તૈયાર હશો સિરિયલને જોવા માટે। અને હવે તો વધારે પડતી આ સ્ટોરી એટલે કે પડદા પાછળની દુનિયા વિશે પણ આજે આપને જ્યારે જણાવ્યું છે, ત્યારે વધુ મજા આવશે આપને આ સિરિયલ જોવાની। તો ત્યારે સમય થયો છે રજા લેવાનો, રજા આપશો, નમસ્કાર।